Good morning to one and all present here. Today we are going to proceed with exercise 5.2 of arithmetic progression of class 10th. So let's proceed. I have introduced you with all the basic identities or the concept or formulae or the terms which will be used in this exercise also. जो इस एक्सरसाइज में भी यूज होंगी उन सभी टर्म्स से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ पहले से ही. So let's begin. On the first question we have a column of A, D, N and AN. We have a column and A is equals to 7 is given, D is equals to 3 is given and N is equals to 8 is given and they are asking about AN. They are asking about AN. वो AN के बारे में पूछ रहे हैं. तो डायरेक्टली हम AN का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं and we know that AN equals to A plus N minus 1 into D and AN will be equals to A means 7 plus N minus 1 means 8 minus 1 and D means 3. Only directly we have to put the values here. Now AN will be equals to 7 plus it is 8 minus 1 7, 7 3 ja 21 and now the finally we got it will be 28. We get 28 as the value of AN. In the same way we have a value one unknown value will be there. 4 columns है आपके पास और 4 columns में से कोई सी एक वैल्यू वो मिसिंग कर देंगे, ठीक है ना. एंड वी हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू. नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट. इसी के फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं हम. फोर्थ पार्ट में क्या कहता है वो आपसे that A is equals to minus 18.9 and D is equals to 2.5 and they are asking about N here and AN is given 3.6. So no need to do anything differently. You have to directly apply the formula of AN. आपको डायरेक्ट AN का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है और रेस्ट विल कम एज इट इज. ठीक है. वैल्यूज अपने आप आती चली जाएंगी जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे. यहाँ पे 3.6 होगी. A minus 18.9 plus we don't know about N minus 1 so it will be remains as it is, वो सेम रहेगा and then 2.5. Now this negative value will be transposed here. वो इधर ट्रांसपोज होगी और ऐड हो जाएगी. So it will be 3.6 plus 18.9 will be equals to N minus 1 2.5. After adding 22.5 divided by 2.5, ये 2.5 से डिवाइड हो जाएगा और n minus 1 ऑन द राइट हैंड साइड. डेसिमल से डेसिमल को हम रिमूव कर देते हैं एंड 25 9 जा एंड देन minus 1 ट्रांसपोज टुवर्ड्स लेफ्ट. इट विल बी 9 plus 1 n, so it means 10. n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10. इन दिस वे फर्स्ट में 5 पार्ट्स है आपके सामने. आप इन्हीं 5 पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? Very good. Now let's proceed for the question number 2 also. Question number 2 की तरफ आ जाते हैं जल्दी से. Question number 2 we have here and it is in the form of a MCQs. So it will be the example for you that how the AP question will be transformed into a MCQs. ये आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे एमसीक्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं हमसे 30th टर्म ऑफ द एपी एंड द एपी इज 10 7 and 4. 10 7 4 and so on. These are the terms of the AP or it is the AP and now they are asking about 30th term. It means 830 they are asking. So from 830 we can easily get it that the total values of n will be 30. And from the AP we can get A equals to 10 and D equals to minus 3. D minus 3 क्यों है? जिस किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा था, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा था, उसको कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें यहाँ परेशान कर रही होंगी. D means A2 minus A1. तो हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 7 minus 10 minus 3 आएगा और बाकी टर्म्स आपके सामने हैं. तो अगर मैं 830 फाइंड करना चाहता हूँ तो 830 की डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी? A plus 29D. ये भी हमने सीखा था
कि डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। तो 830 हमें फाइंड करना है और a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय -3। नाउ 830 विल बी इक्वल्स टू 10 माइनस 87, ठीक है। नाउ 830 विल बी इक्वल्स टू -77 will be your final answer and you can choose the correct option from the points and C will be the correct answer on the page number 106 of NCERT book. Clear? In the same way, now if we proceed for question number 3, तो question number 3 की तरफ अगर हम चलते हैं तो question number 3 भी बिल्कुल सेम है, they all are identical। इसमें क्या है, कुछ मिसिंग बॉक्सेस दिए हुए हैं, तो मिसिंग बॉक्सेस आर क्वाइट सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 में मिसिंग टर्म्स थी उसकी तरह बिहेव करेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है अभी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट अगर मैं चूज करता हूं, फर्स्ट तो बहुत सिंपल है, इसी से पता चल जाएगा आपको करना कैसे है। वो बॉक्स दिया हुआ है, देन 13 इज गिवन हियर ऑन द सेकंड टर्म, अगेन वी हैव अ बॉक्स एंड देन 3। तो इसमें हमें सिर्फ एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि इसमें जहां कहीं भी जो मिसिंग टर्म्स हैं वो कौन कौन सी पोजीशन है। अगर हम इसको पता कर ले पहले तो कि दैट विल बी A1 एंड दैट विल बी A3, तो इसका मतलब हमसे A1 और A3 पता करना चाह रहे हैं और जो गिवन वैल्यूज हैं उनके बेसिस पे वो वैल्यू फाइंड होंगी। सो वी कैन राइट हियर A2 इज इक्वल्स टू 13 एंड A4 इज इक्वल्स टू 3। A2 मींस A प्लस 1D, एक इक्वेशन हमारी ये बनेगी, एंड A4 इक्वल्स टू A प्लस 3D, इट विल बी 3, एक इक्वेशन हमारी होगी। सो वी कैन ट्रीट दीज टू इक्वेशंस एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम इसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर? सो इफ वी सॉल्विंग इट ऑन सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशंस, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो आप सब्ट्रैक्टिंग के लिए ऊपर नीचे लिख सकते हैं ऐसे, A प्लस D इक्वल्स टू 13 एंड A प्लस 3D इक्वल्स टू 3। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, ये आप सबको पता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी -2D एंड इट विल बी 10, D इक्वल्स टू -5, D विल बी योर -5। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ D, पुटिंग D इक्वल्स टू -5, देन A प्लस 3D इक्वल 3 है हमारे पास, तो A प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, एंड देन A माइनस 15 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, और 15 और 3 18 हो जाएंगे। A की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 18 एंड D विल बी -5। अब A और D हमारा सबसे बेसिक चीज है हमारे पास कि सबसे पहले हमें A और D पे फोकस करना है, क्योंकि AP की किसी टर्म तक पहुंचने के लिए हमें A और D की जरूरत पड़ती है। 5th टर्म 6th टर्म सबकी किसी भी पोजीशन पहुंचना है आपको, तो आपको A और D की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले कोशिश करें हर क्वेश्चन में A और D फाइंड करने की। अब A और D जब हमारे पास आ चुके हैं, तो जैसे ही हम A1 की बात करेंगे तो A1 का मतलब A, that will be 18, so we can directly write here 18। और A3 की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा इसे यहाँ से थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। A3 की जब वो बात कर रहे थे तो A3 मींस A plus 2D and A is 18 plus 2 and D is -5, so it means 18 minus 10, it is 8, A3 is 8। so in this way you can easily check it also, आप चेक कर सकते हैं कि -5 डिफरेंस आ रहा नहीं आ रहा है। 18 13 -5 होने के बाद आता है 13 -5 8 आएगा, देन -5 3 आएगा। क्लियर? तो इन दिस वे थर्ड क्वेश्चन भी आपको सॉल्व आउट हो जाएगा, बट थर्ड क्वेश्चन का 5th पार्ट और एक बार देख लेते हैं। क्लियर? थर्ड पार्ट 5th पार्ट देख लीजिए, उसमें बहुत सारे मिसिंग प्लेसेस हैं, लेकिन पैटर्न यही होगा उसको सॉल्व करने का भी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन हमारे पास कौन कौन सी दो पोजीशंस दी हुई हैं, ये इस पे ध्यान दीजिए। दैट वी हैव A2 इक्वल्स टू 38 एंड A2 मींस, हम इसे और अगर इसे इलेबोरेट करके लिखते हैं तो A2 मींस क्या हो जाता है A प्लस D, 1D है ना। और ये हमारे पास कौन सी पोजीशन है 6th पोजीशन, इट मींस A6। अगेन हम यहां लिखेंगे अगेन A6 इज इक्वल्स टू -22,
और A6 को हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं, A प्लस 5D इज इक्वल्स टू -22, सेकेंड पोजिशन को इक्वेशन। ऑन सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, तो आप यहां लिखेंगे ऑन सॉल्विंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिख दीजिए डायरेक्ट, बोथ इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अगर आप यहाँ फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। कैसे? a प्लस डी इज इक्वल्स टू 38 एंड a प्लस 5d इज इक्वल्स टू -22। और सब्ट्रैक्शन के केस में हमेशा साइन चेंज होते हैं, तो इसका साइन नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, और ये दोनों पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इट विल बी -4d एंड इट विल बी 60। सो d विल बी इक्वल्स टू, तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आती है, इसे देख लीजिए आप यहाँ पे, d की वैल्यू आती है -15, d विल बी -15, और d -15 हमारे पास आ चुका है। और अब हम इस वैल्यू को किसी भी दोनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे a निकालने के लिए। तो a प्लस डी कितना है हमारे पास, 38 है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिख दीजिएगा, फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन से आया, a प्लस डी 38 है आपके पास, और a -15 इक्वल्स टू 38 एंड a विल बी इक्वल्स टू 38 प्लस 15। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 13 एंड 53। ठीक है, 53 हमारे पास a आ गया है। अब वो 53 a पूछ रहे हैं तो सबसे पहले तो 53 हो जाएगा, क्योंकि दैट इज a, ये हमारे पास a ही होता है। फिर हमसे पूछ रहा है वो, ये a3 है, ये a4 है, और ये a5 है। क्लियर? मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूं, स्पेस बनाना जरूरी है क्योंकि। अब इसके बाद a3 जब हमसे पूछ रहे हैं तो a3 क्या होता है, a प्लस 2d होता है, और a की वैल्यू 53 प्लस ट्वाइस ऑफ -15, इट मींस 53 माइनस 30 एंड इट विल बी 3 एंड 2 23, तो यहाँ 23 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब हम a4 की बात करेंगे, इसी में आप आगे इसी में -15 करते चले जाइए, आपका आंसर आता चला जाएगा। अगर आप कहते हैं इसके बाद -15 करके भी डायरेक्टली फाइंड किया जा सकता है, तो a4 हो जाएगा 23 माइनस 15, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 15 8, दैट विल बी 8। क्लियर? इस तरह से आप इसकी जितनी बची हुई वैल्यूज हैं, इससे आगे भी अगर वो कुछ पूछता है तो हम ऐसे वैल्यूज को फाइंड करते हैं। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं कि आंसर्स को डायरेक्टली याद कर रहे हैं आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए जरा, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। वो कहता है इस एपी की कौन सी टर्म 78 है। ठीक है, इसको यहीं पे खत्म करके मैं क्वेश्चन 4 की तरफ मूव कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहता है वो, विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की कौन सी टर्म 3 8 13 18 एंड सो ऑन, दैट विल बी 78। ये एपी हमारे पास है, और वो कहते हैं कौन सी टर्म 78, तो हम कहते हैं nth टर्म, या तो हम इसको nth टर्म कहते हैं या फिर हम इसको लास्ट टर्म कहते हैं, LF डिनोट करते हैं या फिर an। ये ध्यान रखिएगा, किसी किसी बुक में आप रिफ्रेशर में देखेंगे तो कहीं an को यूज कर रहे हैं, कहीं वो l यूज कर रहे हैं, लेकिन दोनों का फॉर्मूला एक ही है, an और l आर विल बी रिटन हियर a plus n minus 1 into d will be introduced by the same formula। वो सेम फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे लास्ट टर्म बोले कि हम कह देते हैं ठीक है 78 कौन सी टर्म है, हमारी लास्ट टर्म है। ठीक है, और या फिर nth टर्म बोल देते हैं कि nth पोजीशन पे जाके आएगी, हमें नहीं पता, तो उस तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर? अब इसमें मान लीजिए मैंने इसको an की फॉर्मेट से ही कर रहा हूं मैं, अगर मैं इसको an ही ले रहा हूं, तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, an की वैल्यू 78, a की वैल्यू 3, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म 3 होगी, n हमें पता नहीं है क्योंकि पोजीशन तो हमें पता नहीं है कहां पे है इसकी पोजीशन, और d कितना होगा 8 - 3 5 हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 78 - 3 75 एंड डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 n - 1 एंड देन 5 1 5 5 5 25 15 प्लस 1 इक्वल्स टू n। 16th पोजीशन पे जाके आपके n की वैल्यू 78 हो जाएगी। इट मींस 16th पोजीशन पे जाकर इस एपी की जो वैल्यू होगी, जो 16th टर्म पे वैल्यू होगी, दैट विल बी 78। ओके, सो इन दिस वे वी हैव टू प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 5 आल्सो, सो नोट इट डाउन।
Find the number of terms of each AP. They are asking in the fifth question. Number of terms means n वो पूछ रहे हैं आपसे। जो चीजें आपके पास है पहले उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं। A हमारे पास 18 है और D हमारे पास 15 to 30, 31/2 minus 18 और it will be -5/2। और क्या दिया हुआ हमें? L मीन्स लास्ट टर्म -47। वो कहते हैं इस एपी में कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करनी है, n आपको फाइंड करना है। तो हमने कहा -47 लास्ट पोजीशन पे जाके आ रहा है, उसको an भी यूज कर सकते हैं आप और l भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म, तो अगर मैं लास्ट टर्म का फॉर्मूला लिखूंगा तो सेम फॉर्मूला है a + n - 1 * d और l = -47 a 18 + n - 1 * d की वैल्यू क्या निकाली हमने? -5/2, ठीक है। तो -47 -18, पहले 18 इधर ट्रांसपोज होगा और n - 1 को ऐसे ही रहने दें, -5/2। देखिए -5/2 को अंदर एंटर करा सकते हैं हम मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पर, बट मेरा मानना यह है कि इसकी कैलकुलेशन और टफ हो जाएगी, उसको इधर ट्रांसपोज करेंगे हम। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 565 -65 आ रहा है, जब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 2 goes on the numerator and -5 in the denominator। देन माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, 5 से 13, ठीक है। और 13 टू 26 इक्वल्स टू n - 1, ये हमारे पास आ रहा है। और जब हम 1 - 1 को इधर लाएंगे 27 विल बी द वैल्यू ऑफ n। सो इट मींस वी हैव 27 टर्म्स इन द एपी। हमारे पास कितने टर्म्स हैं? 27। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, जब आप चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी। वो कहते हैं क्या -150 इसकी टर्म है, तो हम उसको L मान लेंगे, यस लास्ट में आ जाके कहीं आएगी। उसको AN मान लेंगे या लास्ट टर्म मान लेंगे, मींस या तो हम उसको nth पोजीशन दे देंगे या फिर हम उसको लास्ट पोजीशन देंगे। क्लियर? तो आप सेम क्वेश्चन नंबर 6 भी आप इस तरीके से कैलकुलेट करके देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, हल्का सा, उसको समझिएगा। ये ऐसे समझिए, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो भी दिए हुए हैं आपके सामने, 8 9 तक, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। इनको उन्होंने वहां पे बॉक्स करके वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ था, यहाँ पे ये वर्बली इन्होंने टर्म की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो वर्बल एक्सप्रेशन को हम पहले मैथमेटिकल में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38। तो 11 टर्म, इट मींस A11 इज गिवन, A11 इज 38 एंड A16 इज 16 टर्म इज 73। ये दोनों टर्म्स आपको दी हुई हैं, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हो गया, क्योंकि A11 को हम A + 10D कहते हैं, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट्स में किया था। ऐसे ही A16 को हम A + 15D कहते हैं, ठीक है। और अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस की तरह। इट विल बी -5D और जब आप इसको माइनस करेंगे तो इट विल बी 5 एंड 3 माइनस, तो माइनस से माइनस, तो D की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है? 7। अब D7 होने के बाद क्या करेंगे? अब हम A की वैल्यू फाइंड करेंगे, पुटिंग इन फर्स्ट। सो A + 10D विल बी, इट वाज 38 एंड A + 70 विल बी इक्वल्स टू 38, क्योंकि D की वैल्यू 7 यहाँ पुट कर दी मैंने, 70 हो गया। और A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 38 - 70, नेगेटिव आ जाएगी। क्लियर? और A इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ रहा है अभी? 2 and then 6 + 3 32 -32 will be the value of A। A और D दोनों हमारे सामने आ चुके हैं। अब वो हमसे क्या पूछते हैं? उन्होंने हमसे पूछा है 31st टर्म। सो A31 will be equals to A + 30D and A - 32 है, 30 कितना है? 30 × D कितना है? 7। तो -32 + 210, क्योंकि बॉड मास से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 210 10 - 2 8 एंड इट विल बी 11 80 78 178, ठीक है। 178 विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर A31। और
In the same way, eighth question, an AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. तो लास्ट टर्म L दिया हुआ है, ठीक है, इसमें लास्ट टर्म L दिया हुआ है और थर्ड टर्म A प्लस 2D दिया हुआ है। तो 829 टर्म वो हमसे पूछ रहे हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट से अगर हम इसे करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 सेज दैट द AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, उसमें टोटल 50 टर्म्स हैं। तो n की वैल्यू हमें पता चल गई 5 होगी, नंबर ऑफ टर्म्स 50 होंगी। एंड A3 हमें दिया हुआ है, A3 कितना होता है, वो कहता है A3 हमारे पास 12 है और A3 होता है A प्लस 2D। तो A प्लस 2D इक्वल 12 दिया हुआ है, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन यहाँ मिली। और लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म कितनी है, दैट इज 106। तो हम डायरेक्टली यहाँ 106 की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो इट इज 106 और A हमारे पास नहीं है, ठीक है। A प्लस n की वैल्यू 49 हो जाएगी D। तो इस इक्वेशन से जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसकी हेल्प हम कैसे लेंगे, हम यहां से A की वैल्यू ले लेते हैं और A इक्वल हो जाएगा 12 माइनस 2D, 12 माइनस 2D। तो हम यहां पुट कर सकते हैं उसको, ताकि पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि एक इक्वेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल से सॉल्व हो सकती है। तो अगर हमने यहां लिखा 12 माइनस 2D इस A की जगह पर हमने ये लिख दिया और प्लस 49D एज इट इज रहेगा। इसके बाद हम D वाली टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं, इसको माइनस 12 इधर लेकर के आ जाइए और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे इट विल बी 47D। नाउ जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 6 में से 4 माइनस 2 माइनस करेंगे 4 आएगा और 10 में से 1 माइनस के 94 आएगा एंड डिवाइडेड बाय 47 एंड 47 2 जा 94। सो इट मींस D की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। जब D की वैल्यू 2 आ गई उसको हम यहां पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा A इक्वल्स टू 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। हमने D की वैल्यू 2 लिख दी यहाँ पे। फिर A इक्वल्स टू 12 माइनस 4 एंड A इक्वल्स टू 8, ठीक है। एक मींस फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी आ चुकी है 8 और D, A और D हमें सबसे पहले फाइंड करने होते हैं। अब क्वेश्चन को देखेंगे, उसने कहा A29D बताइए जी। तो A29 A प्लस 28D, 29 टर्म पूछ रहे थे ना हमसे। तो A कितना है 8 एंड 28 मल्टीप्लाई बाय D कितना था 2। तो 8 प्लस 28 2 जा 56 एंड 56 प्लस 8 64। इस तरीके से 29 हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। ये चीजें आपको इस तरीके से कैलकुलेट करनी है। हमेशा ध्यान रखो A और D सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट में फाइंड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। 9 और 10 क्वेश्चन और देख लीजिए। इस वीडियो में सिर्फ हम 10th क्वेश्चन तक देखेंगे और जो इसका थर्ड पार्ट होगा हमारे एपी का, उसमें हम 11 to 20 उन 10 क्वेश्चन को वहां पे देखेंगे, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखिए जरा। 9th क्वेश्चन में क्या है, A3 and third term and ninth term of AP is 4 and 9 minus 8 respectively. It means थर्ड टर्म हमारे पास 4 है और 9th टर्म हमारे पास -8। Which term of the AP is 0? वो कहते हैं इस AP की कौन सी टर्म 0 है। तो हम कहते हैं ठीक है लास्ट टर्म को 0 मान लेते हैं, या फिर nth टर्म को, जैसे मैंने पहले समझाया था an को, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का सेम फॉर्मूला होता है। आपके सिर्फ बोलने का लहजा है। और अब हम कहते थे ठीक है लास्ट टर्म 0 है, L इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D फॉर्मूला होता है। बट उससे पहले हम यहाँ से वैल्यूज फाइंड करेंगे। वो वैल्यूज कैसे फाइंड होंगी पहले उसे देख लेते हैं। तो इसको भी रेज कर देते हैं, फॉर्मूले को भी यहाँ से। पहले हम क्या लिखेंगे, दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे। इसको A प्लस 2D लिखेंगे, 4 के इक्वल होगा। इसको लिखेंगे तो A प्लस 8D लिखेंगे, ये -8 हो जाएगा। जब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A और D की वैल्यूज आ जाएंगी। इट विल बी -6D एंड इट विल बी 12 एंड D इक्वल्स टू -2। D की वैल्यू -2 आ गई है। अब हम इस -2 को कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो A प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल्स टू 4। कौन सी इक्वेशन ली हमने, फर्स्ट इक्वेशन ले ली है। यहाँ लिख सकते हो आप फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस है ना, तो फ्रॉम फर्स्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके बाद A -4 इक्वल्स टू 4 एंड A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने 8। A की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई 8। A 8 आने के बाद हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज को यहाँ पुट कर, A और D दोनों आ चुकी है, ठीक है। A 8 D -2। वो कहते हैं लास्ट टर्म अगर 0 है, विच टर्म ऑफ द AP 0, कौन सी AP की टर्म 0 है, हमने कहा लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। और लास्ट टर्म को 0 मानते हुए अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं
तो 8 प्लस n-1, क्योंकि जीरो जो पोजीशन है, जीरो जो वैल्यू है वो कौन सी पोजीशन पर, वो n से फाइंड होगा, तो इट विल बी -2, d की वैल्यू -2 होगी, तो ये -8 हो जाएगा इधर, और ये n-1 इंटू -2 मैंने कहा था। इसको अंदर एंटर ना करा के अगर आप डिवाइड में लेके जाएंगे तो ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन बच जाती है आपकी थोड़ी सी। ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 5 विल बी n, ये -1 इधर ट्रांसपोज होगा, n की वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी 5। इस तरीके से क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10, 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7, एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7। देखो जब कभी एक्सीड का केस आता है तो एक्सीड मींस इंक्रीज ही होता है, बट एक्सीड में हम, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि दो चीजें हैं, हम सामने वाले को इंक्रीज करते हैं। वो कहता है 17 टर्म इज एक्सीडिंग इट्स 10 टर्म बाय 7, तो उसके 10 टर्म को इंक्रीज कर रहा है, तो इट मींस 10 टर्म को 7 और इंक्रीज कर देंगे। क्लियर, एक्सीड ऐसे होता है, इंक्रीज होता है अगर, तो 17 टर्म इज इंक्रीज्ड बाय, तो वो 17 टर्म को बढ़ाते चले जाते हैं, बट एक्सीड के केस में हम सामने वाले को बढ़ाते हैं। तो 17 टर्म एक्सीड कर रहा था किसको, 10 टर्म को, तो यहां से आपको डी फाइंड करना होगा। तो a प्लस 16d हमारे सामने है, इट विल बी a प्लस 9d, ये 9d हो जाएगा प्लस 7, तो a से तो यही कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, और 16 माइनस 9, d को साथ लेके चलिए, और 16 माइनस 9 कितना होता है 7, एंड d इक्वल्स टू 1। इतना सिंपल क्वेश्चन था, बस उस एक्सीड की वजह से बहुत बार इसके आंसर मिस्टेक से, गलती से, और आपकी थोड़ी सी लापरवाही से मैच नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा इस तरीके से क्वेश्चन को के साथ फ्लो में आने की, ताकि आप लोगों का कमांड भी अच्छा होता चला जाए क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है ना, एक एनर्जी हमारे साथ साथ बढ़ती चली जाती है, ठीक है। ओके देन, नाउ प्रोसीड फॉर द पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस वीडियो, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। थैंक यू।